چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو آپ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کیا۔ روایات میں آتا ہے 16 سے 18 ہزار لوگ 16 سے 18 ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز کے لیے ٹھہرا تو پیچھے جماعت ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ جب نماز مکمل ہو کے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سارے لوگ جو ہے نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی نکل گئے تھے، حکومت کی خوف سے نکل گئے تھے۔ جب نماز ہونے سے پہلے نکلے، انہی دھکوں میں دو چھوٹے چھوٹے بچے دھکے کھاتے ہوئے مسجد کے باہر نکل گئے، اور جب باہر نکلے تو جس دروازے پر جاتے تو سب دروازے بند نظر آتے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھیا، کیا اس پردیس میں کوئی بھی ہمارا نہیں ہے؟ جہاں دیکھو تو دروازہ بند نظر آتا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ فکر مت کرو، تھوڑی ہی دیر میں ہمارے بابا ہمیں تلاش کر لیں گے۔ رات گئی، صبح کا وقت آنے لگا تو اتنے میں آوازیں آنے لگی، مارو مسلم کو، مارو مسلم کو، قتل کر دو مسلم کو۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھیا، یہ کس مسلم کی بات کر رہے ہیں؟ تو بڑے بھائی کے آنکھوں میں آنسو نکل گئے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا آپ کو تو جھوٹ بولنا تک نہیں آتا، یہ لوگ ہمارے بابا مسلم ابن عقیل کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، کیا ہمارے بابا مسلم ابن عقیل کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے؟ اب ان دو ننھے شہزادوں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو ان دونوں شہزادوں نے بوڑی کے چبوترے پر چڑھ کر ایک درخت کے ڈالی پر چھپ گئے، کیونکہ پناہ نہیں تھی۔ جب صبح کا وقت آیا تو ایک مومنہ پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس پہنچی تو ڈول رکھا ہوا تھا، ڈول میں عکس نظر آ رہا تھا کہ ڈول میں دو شہزادوں کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں، پانی میں عکس نظر آتا ہے، چاند کا عکس نظر آتا ہے، اسی طرح ان دونوں شہزادوں کا چہرہ اس ڈول میں نظر آ رہا تھا۔ اس مومنہ نے سر اٹھا کے دیکھا، دو شہزادے تھے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ بڑے بھائی نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ پھر اس عورت نے پوچھا کہ آپ دونوں کون ہو؟ نہ جانے کون تماچا مار دے۔ اسی لیے بڑے بھائی نے کہا، ہم تو کوئی بھی نہیں ہیں، ہم تو کوئی بھی نہیں ہیں۔ تو چھوٹے بھائی، چھوٹی بالکل چھوٹی عمر تھی دونوں کی، ان میں سے چھوٹے بھائی کہنے لگے کہ ہم مسلم ابن عقیل کے دو یتیم ہیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ چلے میرے ساتھ، میں آپ کے جد کے ماننے والی ہوں، میں مولا کائنات کے ماننے والی ہوں، میں ان ظالموں میں سے نہیں ہوں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اس مومنہ نے ان دو شہزادوں کو اپنے ساتھ لے گئی، اپنے گھر لے گئی، انہیں کھلایا پلایا اور گھر کے اندر ایک حجرے میں ان دونوں کو چھپا کے رکھا۔ اس مومنہ نے ان شہزادوں کو کہا کہ آپ دونوں یہاں رہیں، یہاں سے باہر نہ نکلیں اور آپس میں بات نہ کریں، ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں تاکہ آپ کی آواز باہر نہ نکلے۔ اور اس خاتون نے یہ بتانا بھول گیا کہ میرا شوہر ظالم ہے۔ جب رات کا وقت آیا تو اس کا شوہر گھر پر آیا۔ اس عورت نے پوچھا اس کے خاوند کو، کہاں گئے تھے اتنی دیر تک، کہاں گئے تھے اتنی دیر تک؟ تو وہ عورت پوچھنے لگی اس کے خاوند سے۔ اس کے خاوند نے جواب دیا، میں سارا دن مسلم ابن عقیل کے دو شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 5000 درہم انعام رکھا ہے کہ جو کوئی بھی ان کا کٹا ہوا سر لے کے آئے گا تو انہیں عبید اللہ ابن زیاد 5000 درہم دے گا، انعام رکھا ہے اس نے۔ اسی لیے میں سارا دن ان دو مسلم ابن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا۔
उसके खाविंद ने खाना खाया और सो गया। वो खाना खाया और सो गया। ये दो शहजादे भी सोए हुए थे। अचानक दोनों ने एक ही ख्वाब को देखा कि इन दोनों ने क्या देखा कि मौलाए कायनात, आप फरमाते हैं, इनके ख्वाब में मौलाए कायनात आए और आप फरमाते हैं कि आप दोनों मेरे पास आ जाओ। तो दोनों शहजादे नींद से उठे और समझ गए कि आज हमारा आखिरी दिन है। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। इस औरत का शौहर जाग गया, अपने औरत से पूछने लगा कि कौन है घर पर। वो औरत कहने लगी, कोई भी नहीं है। मैं रोने की आवाज सुनता हूं और तू कहती है कि कोई भी नहीं है। और चिराग लिया, घर पूरा टटोलने लगा, तलाश करने लगा। ढूंढते ढूंढते इन दो शहजादों के हुजरे के पास आया। जब आया तो दरवाजा खोला। खोलते ही दो शहजादे वहां थे। उन दो शहजादों को पूछा कि आप दोनों कौन हो। तो छोटे भाई ने कहा, हम मुस्लिम इब्ने अकील के इब्राहिम और मोहम्मद हैं। वो जालिम चिराग को रखा, नीचे रखा और कहने लगा इन दो शहजादों से, मैं सारा दिन तुम दोनों को तलाश करता रहा और तुम तो मेरे घर में मौजूद हो। तुम यही मेरे घर पर हो, मैं तो तुम्हें कहां कहां तलाश कर रहा था। और उसने खंदिल को रखा तो दोनों शहजादों के सरों में हाथ डाला, इस तरह बालों के समीप पकड़कर खींचने लगा, बालों से खींचने लगा। जब उन्हें बाहर लेके आया तो उस औरत ने कहा, इन दोनों शहजादों को कुछ मत करना, क्योंकि ये अली की आल है, खुदा का खौफ कर। तो वो जालिम बदबख्त कहने लगा, मुझे तो 5000 दिरहम चाहिए, मैं 5000 दिरहम लेकर ही रहूंगा। अपने गुलाम से कहा कि चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। जब अपने गुलाम को लेकर कूफे से बाहर निकला तो इस जालिम के पीछे पीछे इसकी बीवी और इसका बेटा भी चल पड़े। जब कूफे के बाहर आया तो अपने गुलाम से कहा, दोनों शहजादों के हाथों को बांध दिया और अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इन दोनों का सर खलम कर देना। गुलाम कहने लगा कि मैं अपनी सारी जिंदगी में इतने हसीन और जमील बच्चों को नहीं देखा, मैं इन दोनों को नहीं मार सकता। उस बदबख्त ने गुलाम पर जुल्म किया, लेकिन फिर भी वो गुलाम नहीं मारा और अपने बेटे से कहा कि इन दोनों का सर जो है वो खलम कर देना। बेटे ने कहा, मैंने इतने नूर वाले बच्चे, इतने फूल वाले बच्चों को, फूल जैसी सूरत दिखने वाले बच्चों को कभी नहीं देखा। अब्बा जरा इन बच्चों के चेहरे पर देख कि कितने नूर है इनके चेहरों पर, कितने हसीन हैं, कितने खूबसूरत हैं, तू इन्हें मारने की बात करता है। उस बदबख्त ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ही इन दोनों को खत्म कर देता हूं। दोनों शहजादों से कहा कि अपने अपने कुर्ते उतारो। जब बड़े भाई कुर्ता उतारने लगे तो छोटे भाई रोने लगे। उस जालिम ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो छोटे भाई ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुर्ता उतारना नहीं आता, मेरा कुर्ता तो मेरी मां उतारा करती थी। ठीक है, अब तुम दोनों जो है वो तैयार हो जाना, अब मैं तुम दोनों का सर जो है वो खलम कर दूंगा। जब उसने तलवार को निकाला और वो चलाने लगा तो बड़े भाई आगे आ गए, कहने लगे, पहले मुझे मारना। उसने पूछा कि क्यों? क्योंकि मेरी मां कहा करती थी कि छोटा भाई बेटे की जगह होता है। और जब वो तलवार चलाने लगा तो छोटे भाई सामने आ गए, पहले मुझे मारना, मेरे बड़े भाई को मत मारना। जालिम ने पूछा कि क्यों? क्योंकि मेरी मां कहा करती थी कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है। जब छोटे भाई ने यह कहा तो बड़े भाई अपने सीने से लगा लिया छोटे भाई को। जालिम ने तलवार को खींचा और एक ही बार में दोनों का सर जो है वो खलम कर दिया।
दोनों को शहीद कर दिया। मुहर्रम करबला का सबसे पहला शहीद जो है वो मुस्लिम इब्ने अकील है, और बाद में इन दोनों शहजादे शहीद हुए। सबसे पहले तो मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हुए, और बाद में हजरत इब्राहिम और हजरत मोहम्मद, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के ये दो शहजादे। जब दो शहजादों को इसने खत्म कर दिया तो एक सफेद कपड़ा जमीन पर बिछाया, इन दो सरों को उस कपड़े में रखा और बांधने लगा। उन दो सरों को बांधकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। जब वो गया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पूछा कि क्या लाए हो? अच्छा, ये तलवार चलाने वाला मलून कौन था? ये बदबख्त कौन था? ये कोई और नहीं जिसका नाम हारिस है। जब ये पहुंचा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पूछा कि क्या लाए हो? उसने कहा कि मुस्लिम इब्ने अकील के दो शहजादों का सर लाया हूं। अच्छा, जरा कपड़ा तो खोल, ये लाल लाल कपड़े में मैं देखना चाहता हूं कि इन दोनों शहजादों का सर किस तरह दिखता है। जब उसने कपड़ा खोला तो उस मलून से पूछा, उस बदबख्त से पूछा कि इन दोनों के चेहरे इतने सुर्ख क्यों हैं? तो उसने कहा इसकी दो वजह है। एक तो जब मैं इन दोनों का सर काटा, इसकी वजह से ये दोनों शहजादों के चेहरे जो है वो सुर्ख हो गए, और दूसरी वजह कि मैंने तमाचे बहुत तमाचे मारे। और फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने कहा, अच्छा, इन दोनों शहजादों के चेहरे पर पानी डालना, मैं देखना चाहता हूं कि इनका चेहरा कैसे दिखता है। जब पानी डाला गया, खून बहने लगा, खून के साथ साथ बाल भी झड़ने लगे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पूछा, हारिस, ये बाल क्यों झड़ रहे हैं? वो इसलिए कि मैं बालों में हाथ डालकर खींचता रहा, इसीलिए बाल झड़ने लगे। दरबार में जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग यही कहते रहे। सारे लोगों ने यही कहा कि हमने हमारी सारी जिंदगी में इतने खूबसूरत बच्चों को नहीं देखा, इतने हसीन, इतने जमील, इतने नूर वाले चेहरों को कभी नहीं देखा। जब 13 मुहर्रम आई तो सैयदतुन निसाई अहलुल जन्नह फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बेटियां कूफा पहुंची। जब अंदर किले के अंदर दाखिल हो रहे थे तो अचानक से किसी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इस गुर्बत में कौन मेरे भाई के सर को देखकर सलाम कर रहा है? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, फुप्पी अम्मा, आप सर किले के ऊपर करके देखें, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का सर है। सारे बीबियां और सारे बच्चे उस सर को देखा और किले के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन एक बीबी जो है वो सर को देखकर वहीं खड़ी रह गई, सर को देखकर वहीं खड़ी रह गई। रिवायात में आता है, बताया जाता है, जिनका नाम रुखैया है, और वो सर को देखकर कहने लगी, मुस्लिम, जो आप पर बीती वो मुझे मालूम हो गया, और जो मुझ पर बीती वो आपको पता चल गया, लेकिन बस इतना बता दे कि मेरे दो शहजादे इब्राहिम और मोहम्मद कहां हैं।